आप इमेजिन करिए 8700 क्यूबिक मीटर माल एक साइट पर पोर करना इन अ सिंगल गो विदाउट एनी ब्रेक. इट डिजर्व्स व्हाट इट गॉट, एन एंट्री इनटू द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. आज मेरे साथ एक ऐसे सिविल इंजीनियर, एक ऐसे कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हैं जो इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने स्पीयरहेड किया, और वो उस प्रोजेक्ट की कहानी हमें बताएंगे कि कैसे 29 घंटे में इस जाइगैंटिक फीट को अचीव किया गया. Hi, I am Rishabh Agarwal from The Code, which is India's #1 construction podcast. And today I have with me Mr. Riyaz Patel. Sir, hi. Good morning. Hi, Rishabh. पहली चीज़ तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पुणे से पूरा टाइम निकाल के आज हमारे पास आए हैं जस्ट टू स्पीक टू आवर ऑडियंस और अपनी नॉलेज हमसे शेयर करना. आप 10 समय निकाल रहे हैं, उसका बहुत धन्यवाद सर. सर, मैं बिफोर आई टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट एंड व्हाट यू अचीव्ड इन दैट प्रोजेक्ट, आप थोड़ा सा अपने बारे में सबको कुछ बताएं सर. अपने बारे में इतना टफ सवाल है ये. बेसिकली a civil engineer. Thoughtful from the beginning. I did my diploma first and then completed my bachelor's. और उस टाइम पे I did a project work in concrete. So how my journey towards concrete वो यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट वर्क आया concrete में. And a lot of grateful thanks to Mr. Vishwanath Phadke. Okay. He was my professor. So we had a challenging project that time, that is study of microsilica in concrete. Okay. And our whole aim was to study the durability of concrete. हम लोग ड्यूरेबिलिटी के बारे में इस पूरे पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे. तो मेरा जो अफेक्शन है ड्यूरेबिलिटी का, ये वहाँ से शुरू हुआ. मतलब कंक्रीट का अफेक्शन मेरा ड्यूरेबिलिटी से ही शुरू हुआ. So took up that project. Phadke sir was a brilliant mind. He actually came from HCC, Hindustan Construction Company, right? And then into academics. So he was very, field person, that kind of person there. He immediately arranged all the materials. He sent the mails also, and then asked us to contact the companies to whom he has sent mails. We got our admixture from Germany. Oh. We got our microsilica from Netherlands. And then certain people from Pune, that is Bharucha company, sponsored the crushed sand. That was the first time a big project was being done totally in crushed sand. So a lab in Pune sponsored our whole project and it got going. In fact, Mr. Prasad was the director of the lab, and when I presented my whole project idea to him, he was a bit confused. In fact, he asked me whether you're doing B or you're doing ME dissertation. सर नहीं, BE कर रहा हूँ. तो बोले this is a daunting task for BE. So I said, okay, thank you. And the work started. And we prepared an M140 grade of concrete. That too with a 100 mm, proper 100 mm slump, which was my curiosity that it should be a practically doable concrete, not only a research project. And we proved the durability aspects of it. So that's how the journey started. I'm here. One interesting fact I would like to tell you that my external guide to this project was Mr. M.S. Shetty. Oh. And he is one of the pioneers of concrete technology, and his book in concrete technology is the most referred book in India. Yeah. So yeah, I was lucky. गुरु अच्छे मिल गए सर आपको. Yes, definitely. Very nice. That is the most interesting part, how you are been mentored. Yeah. It helps you. Absolutely it does. आज भी मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको बेसिकली जो मैंने जिस तरीके से मुझे मेंटरिंग मिली, एक जिसको बोलते हैं ना एक फ्रीडम वाली मेंटरिंग, कि यू ट्राई टू डू व्हाट यू फील सो, राइट, एंड देन ट्राई टू अचीव, जस्ट कीप अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू. टुडे आल्सो आई ट्राई टू काइंड जो बोलते हैं ना काउंसलिंग करना, वो काउंसलिंग में मेरा हरदम एम रहता है कि आई ट्राई टू गिव देम गोल पॉइंट्स, कि भाई ये गोल पॉइंट रखो और मेंटली उसको थॉट प्रोसेस रखो, हाउ टू अचीव इट. रास्ते अपने आप कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे. बिल्कुल. आपका ईमेल आईडी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर. या अब मैं वो ईमेल आईडी वैसे आउट नहीं कर रहा, बट उसमें एक वर्ड आता है कंक्रीट मैजिशियन. या ईमेल आईडी क्यों बनाया आपने ऐसा? सिर्फ मैजिशियन तो लोग मुझे बोलते हैं, पर मेरे लिए मैजिक एक्चुअली कंक्रीट है. राइट.
बहुत नियर एंड डियर सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर बनने के बाद में मैं सिविल इंजीनियरिंग का सिर्फ कंक्रीट ही प्रैक्टिस किया है लास्ट 22-23 इयर्स. व्हाई आई कॉल कंक्रीट इज मैजिक इज, आप देखो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग, अगर कंक्रीट नहीं होता तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन अ 1 किलो, आज 1 किलोमीटर हाई बिल्डिंग बनने का भी प्रोजेक्ट चालू है. यस. सो ये सब जो है, ये इट इज बेसिक, इंट्रिंसिकली इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट कंक्रीट. वो उसमें एक मिनिमम आप स्टील डाल दो और इसको बॉडी की फिजियोलॉजी से आप कनेक्ट कर दो. बॉडी में बोन्स है, अभी आप बोन्स का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लेके रखो, इट विल नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ. ओके, उसके आजू बाजू जो फ्लैश है उसकी वजह से वो बोन्स का स्ट्रक्चर स्टैंडिंग है. राइट. सो कंक्रीट में भी वही रिफ्लेक्ट होता है. So steel, there are muscles, tendons, everything holding to everything together. And that particular, see, bones की जो strength है ना, वो आप increase नहीं कर सकते, आप muscles की strength increase कर सकते हो. Correct, makes sense. So that is where it applies to concrete also. आप steel को एक limited sense में उसकी properties को increase कर सकते हो, but आप concrete को drastically change कर सकते हो. Over the years होता वही है जो building के साथ होता है कि bones की density और strength कम होती है उम्र के साथ. सेम स्टील के साथ होता है, वो डिग्रेड होता है. बिल्कुल यही होता है. skeleton becomes weak. All you can do is strengthen yourself up. Yeah, you added it in a very good way. I was basically saying that कि जो मसल्स हैं आप उसको स्ट्रॉन्गर बना सकते हो. बना सकते हैं एक जनरल लेवल पर भी, जिसके नहीं है स्ट्रॉन्ग उसको भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो. सो सेम विद आप एक M10, M15, M20, एक समझो in India the minimum grade of RCC is M20. Right. तो M20 कंक्रीट को आप M200 भी बहुत इजीली बना सकते हो. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, डूएबल टास्क है. बिल्कुल. ठीक है, तो स्टील वही रहेगा और 200 का कंक्रीट उसके आजू बाजू आ जाएगा. राइट. सो यू कैन क्रिएट मार्वलस स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ इट. एब्सोल्युटली. कई प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं अपने टेन्योर में, अपने टाइम पीरियड में जो आपका वर्क एक्स रहा है, बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दिस प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज हम बैठ के बात करने वाले हैं? देखिए, कंक्रीट तो बहुत किया है. इफ यू गो टू माय लिंक्डइन एंड आज की डेट में अगर आप मेरा लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन पढ़ोगे तो 24 लाख क्यूबिक मीटर से प्लस मैंने कंक्रीट, जी बिल्कुल देखा है मैंने, मीटर क्यूब हैंडल किया है. ये होता है ना, इतना कंक्रीट करने के बाद में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो आना चाहिए. तो दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट वाला ये प्रोजेक्ट है. ये डूइंग सो मेनी थिंग्स इन कंक्रीट, मतलब मेरी रेंज भी काफी बड़ी है. राइट फ्रॉम M3 पंपेबल से M140 पंपेबल तक के आई हैव डन कंक्रीट. इतना सब कुछ करने के बाद में एक जिसको बोलते हैं ना एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट, वो लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट मेरे लिए ये था कि यहाँ जो मेरी स्किल है वो काम में आएगी और साथ ही साथ वो आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री भी मिलेगी. करेक्ट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट आपकी स्किल और सब मैच होना, प्रोजेक्ट की क्वांटम मैच होना और एक सर्टेन जिसको बोलते हैं ना एक आपका करियर का एक जिसको वो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट तैयार होना. सो ये प्रोजेक्ट अपने आप में जब हम लोग ने हाथ में लिया तो इट वाज नॉट एन एम टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स चैलेंज था. एंड देन जैसे जैसे शेप हुआ, जैसे उसमें जो भी क्वेश्चंस चैलेंजेस आए, चैलेंजेस को आंसर हुए, देन वी रियलाइज दैट दिस इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोर. चैलेंजेस की बात हम करेंगे आपसे. आप पहले ये बताइए कि रिक्वायरमेंट क्या थी, स्टेक होल्डर्स कौन थे, एजेंसीज कौन कौन से इन्वॉल्व हुई, टीम कौन कौन थी मेन? सी द मेन क्लाइंट जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंपनी दैट इज KEI Cables. ओके. I was representing Suroj Buildcon. Okay. And it is very necessary that जो जिसको आप represent कर रहे हो they support you. So I got a healthy support from Suroj Buildcon management to keep the whole thing technically correct. Right. And then this whole project started. Initially dimensions कुछ अलग थे, but जब हमारे हाथ में final drawings आई तो as per the dimensions it was 45 मीटर by 45 मीटर राफ्ट. और आज तक के जो चीज़ें इंडिया के बाहर बेसिकली गल्फ रीजन में हुई है 4.5 मीटर हाई राफ्ट. सो दिस वाज इन माय करियर फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का कोई बड़ा मेजर पोर ऑफ द काइंड ऑफ राफ्ट 4.5 मीटर की हाइट का
हो रहा है, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो चीजें वहां से सीरियस होना शुरू हो गई। राइट। अब जब वो चैलेंज आया या रिक्वायरमेंट आई आपके सामने, सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? कि एक तो होता है कि अपनी एबिलिटी पर यकीन होना, तो एक अलग चीज़ है। पहला सॉल्विंग क्यूब कहाँ से शुरू होता है, थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है कि क्या क्या चाहिए होगा, किस तरीके की टीम चाहिए होगी, कैसा सेटअप चाहिए होगा? थोड़ा सर वो कहानी सुनाओ हमें कि हम शुरुआत कैसे हुई और हमने क्या सेटअप बनाया। ये देखिए, मेरे लिए, मैं मेरी तरफ की कहानी सुना जी प्लीज, ऑफ कोर्स। मेरी तरफ की कहानी सबसे पहले शुरू होती है इंटीग्रिटी ऑफ कंक्रीट से। ओके। और ड्यूरेबिलिटी, ये जो 2 पॉइंट्स है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है कि कंक्रीट आप जब पोर कर रहे हो सो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होना है। इंटीग्रिटी से बेसिकली मेरा मतलब ये है कि जो स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो आपकी कंक्रीट की इंटीग्रिटी या आरसीसी की इंटीग्रिटी, आप अगर ज्यादा प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, आरसीसी की इंटीग्रिटी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंक्रीट। तभी वो उसका ड्यूअल एक्शन आएगा, कंबाइंड एक्शन आएगा। सो मैजिक इज नॉट ओनली कंक्रीट, मैजिक इज एक्चुअली आरसीसी। राइट। इट इज कंक्रीट उसको सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। स्टील, मिनिमम स्टील, आप अगर आरसीसी देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ स्टील, राइट, इन 98% ऑफ कंक्रीट। तो दैट इज द मैजिक। एंड इसकी इंटीग्रिटी अगर आप मेंटेन कर पाओगे तो इट विल क्रिएट अ लाइफ टाइम स्ट्रक्चर। राइट। अब आती है ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड एस्पेक्ट, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो उसके लिए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसके डिटीरियोरेशन के एस्पेक्ट्स, उतने को ध्यान में रख के आप उसकी सर्विसेबल लाइफ कितनी इंक्रीज कर सकते हो। तो सर्विसेबल लाइफ इंक्रीज करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और रहना चाहिए मेरे हिसाब से जो भी हम बिल्ड करते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री और हम जो भी कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं इट शुड हैव अ लॉन्ग सर्विसेबल लाइफ, ताकि वैल्यू फॉर मनी हम हासिल कर सके। राइट। वी आर लेस ऑन रिसोर्सेस और वी शुड बी वेरी रिसोर्सफुली वी शुड बी यूजिंग थिंग्स, वी क्रिएट वैल्यू ओवर अ लॉन्ग टाइम। एंड वो ये 2 क्राइटेरियाज हैं मेरे स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए कंक्रीट में। इतनी बड़े पोर के लिए आपको सारा सेटअप ऑन साइट बनाना होगा, बैचिंग प्लांट ये वो सब अपने साइट पे बनाया होगा, या फिर आरएमसी प्लांट से सोर्स हो रहा था? या देखिए, अगर आप कोई भी बड़ा पोर करना चाहते हो, मैं इसकी थोड़ी एक बैक स्टोरी ऐड करना चाहूंगा। जब हम प्रोजेक्ट को टेबल पे लेके बैठे, फाइनल ड्राइंग्स के लेवल पे जब प्रोजेक्ट को लेके बैठे जी, सो फाइनली इट वाज रफली 9000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जो कि एज पर ड्राइंग्स इट वाज 8700 क्यूबिक मीटर्स। सो हम जब मिशन 9000 करके इंटरनल कंपनी में डिस्कशन के लिए बैठ गए, तो मिशन 9000 को हम लोग ये भी सोचे, एक वक्त ऐसा भी था कि इसको 9 पार्ट्स में भरा जाए, डिवाइड करके। वहां पर मेरा ये कंसर्न था कि इसको हॉरिजॉन्टली नहीं भरना है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में नहीं भरना है। तो यहाँ तक के डिस्कशन हुआ कि ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लेयर्स में नहीं भरना है तो हम लोग इसको वर्टिकल 9 डिविजन्स करते हैं फिर। सो ये पॉइंट काफी सीरियसली सोचा गया कि आइदर 9 पोर्स में या कम से कम 3 पोर्स में डिवाइड किया जाए। अगेन जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो कंक्रीट मिलना है, लाना है, अरेंज करना है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। सो दैट वाज अ थिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड। देन फिर और डिस्कशंस हुए, मेरी भी कुछ पॉइंट्स गए। सो इट इज अ वेरी बिग टीम वर्क। इट्स नॉट दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ अ होल टीम, pouring my own concerns, क्योंकि मेरे concerns बहुत specific थे with respect to integrity and durability. So then I proposed high volume fly ash concrete. So ultimately इतना बड़ा पोर है, इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, टेक्निकल इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, क्लाइंट इज इन्वॉल्व, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज इन्वॉल्व। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ी टीम वर्क है। सो हर एक बंदा ये पूरी टीम में अपने अपने कंसर्न्स रेज कर रहा था, इनपुट्स दे रहा था। मी बीइंग द कोर पर्सन फॉर कंक्रीट, मेरे भी कंसर्न्स थे, मेरे भी इनपुट्स थे। मेरे कंसर्न्स जैसे मैंने पहले बताए, इट वाज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। राइट। और मेरे जो इनपुट्स थे फॉर एड्रेसिंग द डिफरेंट इश्यूज वाज कि वी शुड डू इट इन वन सिंगल पोर। If we are doing in multiple pores, the joint should be vertical. We should do high volume fly ash concrete, that is HVFA, to maintain the durability. And one more concern which is addressed by high volume fly ash concrete, specifically
देखिए मैं इस पर थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूंगा कि हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश कंक्रीट is with fly ash, and here two types of fly ash are there internationally, class C and class F. We are very lucky in India कि we are having class F fly ash. हमारा जो कोल है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स जो कोल बर्न करते हैं, it actually produces as a by product, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बोल के फ्लाई ऐश जो बनाता है, that is class F fly ash. अभी क्लास F फ्लाई ऐश में खुद की जो है, खुद की सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज नहीं होती है, सो वो पूरी तरीके से सीमेंट पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है खुद की स्ट्रेंथ डेवलप करने में. सो उसको वो प्योरली सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल की कैटेगरी में आता है. नाउ व्हेन यू आर यूजिंग क्लास एफ फ्लाई ऐश, इसका एडवांटेज ये है कि वो इनिशियल टाइम में बिल्कुल भी हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता है. और इतने बड़े पोर में हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो था हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इसमें काफी हीट जनरेट होगी और हीट बाहर डिसिपेट होने के लिए काफी लंबा उसको ट्रैवल है, और वो ट्रैवल में वो ग्रेडियंट क्रिएट करेगा तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे, और अर्ली जो कंक्रीट होता है न्यूबॉर्न बेबी जैसा होता है, वो स्ट्रेसेस ले नहीं सकता. यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल डिस्ट्रेसेस. जैसे एक मदर एक बच्चे की ये लेती है, केयर लेती है, सो वी हैव टू प्लान इट. इसके लिए हम लोग ने 2 बड़े सिमुलेशन मॉडल्स भी रन किए. आई एम एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड हैंड एट एक्सेल, मतलब पुराने इसमें, और अभी न्यू लेवल पे जब मैं प्रोफेशनल कंसल्टिंग में आया हूँ, वहां से एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में मुझे गूगल शीट्स काफी पसंद है. सो यूजिंग एक्सेल, यूजिंग गूगल शीट्स, मैं काफी मेरा सारा काम करता हूँ. इट्स बीन ईजी. व्हाट्सएप और गूगल शीट जो है वो कोलैबोरेट करने के लिए इट्स अ गुड टूल. फैंटास्टिक. इनफैक्ट नॉट ओनली गुड, मैं तो बोलूंगा इट्स अ बून टू अ पर्सन लाइक मी. मैं रिमोटली भी बहुत सारी चीजें आज के टाइम में मॉनिटर शेयर हो जाती है, आज से 10-12 साल पहले पॉसिबल ही नहीं थी. सो हम लोग ने सिमुलेशन मॉडल्स रन किए टू डिफाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन. उसके लिए मल्टीपल सिनारियोज लिए, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लिए. वी इवन थॉट एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, वी इवन थॉट फॉर गोइंग फॉर अ ट्रिपल ब्लेंड, that is cement, OPC cement with fly ash plus GGBS. But later GGBS, because it contributes to the heat of hydration in the initial period, we thought of going alone with fly ash. Right. And class F fly ash, जैसे मैंने आपको बताया कि it's a fantastic material to be used, and we are very lucky in India to have that material. It totally helps in the secondary cementitious reaction. Right. तो वो यूज किया और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस रेडी किए, उनके ट्रायल्स लिए. एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क था कि पूरे के पूरे कंक्रीट को मल्टीपल लेयर्स में हम लोग ने डिजाइन करने के, मतलब मल्टीपल लेयर्स को डिफरेंट डिजाइन्स में पोर करने का डिसाइड किए. अब डिफरेंट डिजाइन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिफरेंट सीमेंट कंटेंट पे पोर कर रहे थे, बट वी वर पोरिंग इट एट डिफरेंट IST एंड FST लॉजिक. So I'll come back to the IST FST logic क्योंकि वो एक बहुत defining point था पूरे इसमें. So I'll just conclude my fly ash thing. So we went for high volume fly ash concrete. We defined the different mixes and perspective ये था कि what will be the heat of hydration which will be generated over a timeline. उसका dissipation क्या होगा, क्योंकि concrete जो है it is having a holding capacity of heat. Right. अगर आप उसको dissipate नहीं दोगे तो वो hold करके रखेगा. एंड बिकॉज इट होल्ड्स, उसका टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हीट जनरेट होगी वो इंक्रीज होगा. राइट. सो ये सब चीजें जो है यहाँ पर क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि कंक्रीट अगर इंटरनली डिसिपेशन नहीं अलाउ किया, सो इट कैन गो बियॉन्ड 95 डिग्री ऑल्सो. राइट. सो 95 डिग्री बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है. अबव 95 डिग्री पानी जो है, वाटर, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम. अगर आप इसको देखोगे तो वाटर का जो वॉल्यूम है उससे स्टीम का वॉल्यूम 1600 टाइम्स ज्यादा होता है. सो जो एक्सपेंशन है वो 1600 टाइम्स होगा इंटरनली, और वो अंदर स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा. सो काफी क्रिटिकल मैटर थे. इंटर ट्रांजिशन जोन्स को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इंटर ट्रांजिशन जोन जो है ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव करने में. राइट.
सो वी हैड एन एम कि इसको 95 डिग्री तक भी टच नहीं करना. दैट वाज अ मैक्सिमम लिमिट व्हिच वी हैड केप्ट फॉर आवरसेल्फ. और आइडियली हम लोग को उसको कंटेन करना था 70 से 75 डिग्री के बीच में. ये टेम्परेचर रेंज आपने सेट करी कि हाँ, वी हैव टू कंटेन. तो उसके लिए हम लोग ने सिमुलेशन रन किया. मतलब मेरा फर्स्ट सिमुलेशन जो था दैट वाज बेसिकली टू डिफाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन. राइट. फिर वो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिफाइन होने के बाद में हमारे एक थियोरेटिकल लेवल पे हम एक सीमेंट कंटेंट पे टच किए. राइट. एंड वी स्टार्टेड मूविंग. फिर हम लोग ने सीमेंट कंटेंट का अप्रूवल पहले लिया. IPS मेहता लिया, इज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट. वी टुक गाइडलाइंस फ्रॉम देम कि वी आर प्रोसीडिंग विद दिस मिक्स. एंड उसके फिर हमारे ट्रायल शुरू हुए. अभी ट्रायल्स जो फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल था वो था कि आपने जो डिसाइड किया है सीमेंट कंटेंट, उसको आपको पहले स्ट्रेंथ उस पर अचीव करनी है. राइट. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रायल्स वाज दैट थिंग.